Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. So there were a few questions asked to me by someone on Instagram, and I thought I need to address these questions because it's important to address what this person was talking about. So his first question was that if I'm among the top 2% candidates considering both hard work and intelligence, does it guarantee that I'll qualify CSS? So the answer to this is no. If you are among the top two candidates who 2% candidates who are very intelligent, who are very smart, it does not guarantee that you would qualify CSS, because to qualify CSS you do not require in, like, pure intelligence or pure intellect per se. I'm not saying that civil servants are not intelligent. What I'm trying to say is that to pass the exam you require strategy, you require planning. It all depends on how you decide to prepare for the exam. It depends on what timelines you give yourself. It depends on what things are you going to prioritize during your journey, right? So this is what I mean. It's not important कि अगर किसी के पूरी लाइफ A+ आते रहे, वो कभी फेल नहीं हुए लाइफ में, तो वो CSS भी पास कर लेंगे. पर्सनली आई हैव ऑलवेज बीन एन A स्टार स्टूडेंट और मेरा CSS पास नहीं हुआ. सो what would you say? If my teachers were saying कि मैं CSS कर सकती हूँ, my teachers were super confident, everyone around me was confident, to like students or aspirants who had passed their CSS were confident of me. जब वो कह रहे थे कि मैं हो सकती हूँ, they used to say कि you are among the top 2% students जिन पे हमें यकीन है कि आपका हो जाएगा. तो अगर मेरा नहीं हुआ तो of course it doesn't mean कि अगर आप intelligent हो तो आप का CSS हो जाएगा. What you require in CSS is, with the point that I'm trying to make through my videos, is strategy, is planning, is how you map your future plans or your syllabus basically, right? So the second question is, can being unlucky be the only reason for failure in CSS? Yes, it could be. I personally feel that I was very unlucky during my CSS journey because of few events that happened with me. Other than this, I also feel that there were few days during my exams when I was very lucky, specifically on the day of a English essay. During my English essay paper, my political science paper 1, paper 2, and also when I was appearing for for Pakistan affairs and current affairs. I believe that that day the luck was with me because I felt that I knew these answers. I knew the answers to these questions, and I would share how why I'm saying that. Um, I have a lot of stories regarding CSS, and I feel like, if I make even one video each day about it, तब भी मेरी stories खत्म नहीं होंगी, because um, there is a lot to share, and that is why I'm saying that luck plays a huge factor in your CSS journey. ऐसा हो सकता है कि आपने शायद 1.5 साल से तैयारी की हो, लेकिन पेपर वाले दिन यू आर नॉट इन योर सेंसेस, मे बी बिकॉज आप किसी इमोशनल स्ट्रेस में हो और आपका पेपर अच्छा ना हो. ऑन द कॉन्ट्ररी, एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसने सिर्फ 4 महीने तैयारी की हो और वो पेपर वाले दिन इतना फ्रेश है कि ही हैज़ द कंट्रोल ऑफ हिज नर्व्स और वो उस पेपर को बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लें. सो इट्स नॉट ओनली हार्ड वर्क. देखो, इसका मतलब ये नहीं कि जो स्टूडेंट्स 50% 60% पूरा लाइफ लेते हैं वो CSS नहीं कर सकते. सो इट्स नॉट अबाउट बीइंग इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू आर एजुकेशन सिस्टम स्टैंडर्ड. CSS actually requires you to be critical. At the same time, of course, the system has its own flaws, the way its syllabus is, and the way it does promote some sort of conventional approach towards education and induction of civil servants. But at the same time, I believe it does provide a level playing field to everyone. It provides a level playing field to a graduate who's from government college, who's from Kinnaid, who's from LUMS, who's from NUST, who's from, एनी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी. सो उस तरह से तो एक मेरिट बेस्ड सिस्टम डिवेलप हो ही जाता है. देन एंड ऑफ कोर्स इसमें लक डज प्ले अ रोल. देन ऑन एवरेज हाउ मच टाइम इज़ नीडेड टू बी एबल टू राइट करेक्ट इंग्लिश रिक्वायर्ड फॉर CSS? देखें, आपने करेक्ट इंग्लिश तब लिखनी स्टार्ट नहीं करनी जब आपने सोचा है कि आपने CSS देना. आपने करेक्ट इंग्लिश सिर्फ CSS के लिए नहीं लिखनी है, आपने करेक्ट इंग्लिश अपनी प्रोफेशनल और एकेडमिक ग्रोथ के लिए लिखनी है और पढ़नी है, राइट? और परफेक्ट इंग्लिश कभी कोई, वो जो परफेक्ट लेवल है एक इंग्लिश का, वो हम अचीव नहीं कर सकते. इट्स नॉट अ मदर टंग.
बट वॉट वी कैन डू इज़ कि हम बस प्रैक्टिस करते हैं, और आपको कितनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, दिस इज़ अ वेरी वेरी कस्टमाइज्ड सॉर्ट ऑफ आंसर फॉर एवरी इंडिविजुअल who has this question. For example, मुझे अच्छी इंग्लिश लिखने को कितना टाइम रिक्वायर्ड है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम हाउ मच टाइम यू रिक्वायर्ड, डिपेंड्स कि आपके ग्रामेटिकल एरर्स हैं या नहीं, आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है या नहीं. अगर आप सी एस एस की करने का सोच रहे हैं तो मेरी ये सजेशन होगी कि फिक्स योर फाउंडेशनल एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स को पहले फिक्स करें. वर्ब एग्रीमेंट जो होता है, वर्ब नाउन एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ों को आप फिक्स करें, बिकॉज इनसे बहुत ज़्यादा मार्क्स कटते हैं. और फिर आई थिंक ये जो स्टूडेंट है इनका डोमिसाइल सिंध का है, तो ये पूछ रहे हैं कि सिंध डोमिसाइल के साथ कितने चांसेस होते हैं कि हमारी एलोकेशन हो जाए. तो इसके यही चांसेस होते हैं कि अगर आप 680 प्लस मार्क्स ले लेते हो रिटन में, और इंटरव्यू में समवेयर अराउंड 150 120 प्लस ले लेते हो, तो आपकी एलोकेशन हो जाती है आपकी मनपसंद ग्रुप में, राइट. एंड देन देखो, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द ऑड सर्कमस्टांसिस दैट कैन अपीयर विद एनी स्टूडेंट, या जो भी हो सकता है. बट ये है कि कोशिश करें एटलीस्ट 650 680 तक तो मार्क्स आनी चाहिए. पंजाब डोमिसाइल वालों को तो स्ट्रिक्टली 700 प्लस कहा जाता है आपके रिटर्न में लाएँ. सो या इट्स डिफरेंट, लेकिन स्टिल आई कैन से कि अच्छा सिंध में ये भी तो है ना, रूरल डोमिसाइल है, सिंध रूरल है, सिंध अर्बन है. सो उसके बेसिस पे भी कुछ आई थिंक सिंध रूरल वालों को ज़्यादा पहले आई थिंक प्रेफरेंस दी जाती है ओवर सिंध अर्बन डोमिसाइल स्टूडेंट्स. And of course, it's the toughest one for the students who have a Punjab domicile. So things work like that. You need to evaluate and you need to gauge things accordingly. But one point that I again would like to make is that intelligence और CSS दो अलग चीज़ें हैं. CSS पास करने का सिर्फ एक थ्रेशोल्ड ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट हैं या आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है. यू कैन बिल्ड अप ऑन योर लैंग्वेज विद टाइम, ओवर टाइम, प्रैक्टिस के साथ. ठीक है, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप प्रेशर में कितना पढ़ सकते हो, आपकी डिटर्मिनेशन स्किल कितनी है, आप कितनी देर में कितनी चीज़ें ग्रैस्प करते हो, आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स कितनी हैं, आप एक सिंपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रेजेंट करते हो, इन सारी चीज़ों पे CSS डिपेंड करते हैं. CSS इज़ नॉट ओनली अबाउट इन्फॉर्मेशन. CSS में हमेशा स्टूडेंट्स को लगता है कि पता नहीं इंटेलिजेंट होने का मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना, बहुत ज़्यादा डाटा होना. बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डाटा होना डज नॉट गारंटी यू पासिंग CSS. व्हाट यू रिक्वायर इज़ कि आप कम डाटा, कम इन्फॉर्मेशन को भी किस तरह से यूज़ करो कि इट हिट्स द नेल, इट हिट्स द पॉइंट जो कि एग्जामिनर चाहता है आप एड्रेस करो, राइट. सो जस्ट मेक श्योर कि इंटेलिजेंस something else, and intelligence is something that's very subjective. You basically need to be very strategic, that's the right word I would like to use. It also depends on what kind of person you have been all your life. ठीक है, अगर आप पूरी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स रहे हैं who has never been very disciplined, who has never been really into adaptability in terms of different subjects or stuff, तो फिर आपके लिए CSS मुश्किल हो सकता है. ठीक है. So yeah, this was the video for today. I hope you like it, and I try to address the questions through videos जो मुझे लगता है कि aspirants को at large पता होनी चाहिए. So yeah, this was the video for today. Thank you.